हाय गाइस, वेलकम टू पार्ट टू ऑफ दिस सीरीज। इस वीडियो के अंदर हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। Venice Light Works VLW manufactures multicolor glow bulb MCG10 used for lighting and decoration. MCG10 considered as reliable product in market due to zero defect. VLW sells MCG10 through retail chains and individual shopkeeper apart from factory outlet. MCG10 has demand throughout the year, but there is high demand during festival seasons, especially ahead of Diwali. Company follows the lot purchase system and manufacture the product ahead of peak season of festivals. Presently, the VLW is working at 80% of capacity and manufacture 4 lakh bulbs annually at following per unit cost. Direct material, which is given as variable, 22. Direct labor, given as variable, 6. Factory overhead, engineering cost fixed दिया है 10. Machining cost fixed दिया है 5. Inspection cost is variable at 5. Administration overheads is fixed at 12. Selling and distribution overheads is fixed at 12. Okay, total cost हमें बता दिया. Recently, the competition in decorative lights and electronic markets has escalated due to goods imported from Chinese manufacturers at cheap rates. Such imported light bulbs are also sold through same shops at which MCG10 is available for sale. Due to cheaper in rate, customer prefer imported light bulb rather MCG10. To be competitive in market, the marketing department of VLW conducted applied research and suggested that price should be 12.5% lower than the current prices. Okay, VLW during last 3 financial years and during current year records the pre-tax profit at 10% rate of sale. Management of VLW wish to earn the same rate of profit in upcoming years too. Production and operation manager is of opinion that cost reduction in order to be competitive in market may result in reduction in quality. Whereas manager of quality control suggests if number of inspection staff is increased, then inspection can be performed at each stage and defect can be curtailed at the earliest stage to eliminate rework cost. Rework का cost हमें बताया नहीं बताया. Management accountant is of opinion that since MCG10 is mature product, hence majority of cost associated in production of MCG10 are committed in nature. Price cutting seems difficult. It may hit the top line and bottom line adversely. In response to him, Chief Engineer suggests product MCG10 can be redesigned. But marketing manager shown his resistance on the suggestion of redesigning of product because according to him, existing product appearance and features are key reasons for popularity of product in market and leads to sale. We have to calculate price suggested by marketing department. उसके लिए पहले प्राइस निकालना होगा. तो 72 का टोटल कॉस्ट है. प्रॉफिट मार्जिन है कुछ, तो प्रॉफिट मार्जिन क्या दिया हुआ है 10% ऑफ सेल. तो यहाँ पे मेरा सेल आ जाएगा, इसको मैं ले लेता हूँ x, तो ये हो जाएगा 0.1x, राइट. तो टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट शुड बी दिस. तो इसको इक्वेट कर देंगे तो x क्या आ जाएगा 80, राइट. तो आपका अभी करंट प्राइस 80 है. अब इसमें रिडक्शन चाहिए 12.5% का, तो रिडक्शन कर देते हैं.
ये आता है 70। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 70, सिर्फ कैलकुलेट करना था। कंप्यूट द टारगेट कॉस्ट एंड न्यू मार्जिन, अप्रेज परसेंटेज डिक्लाइन इन मार्जिन। टारगेट कॉस्ट निकालना होगा, तो 10% चाहिए हमें सेल का प्रॉफिट। अगर प्राइस 70 है तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 10% ऑफ 70 दैट इज 7। तो मेरा टोटल कॉस्ट आ जाएगा 63। ऑलराइट, तो 63 टारगेट कॉस्ट आ गया, न्यू मार्जिन 7 आ गया। परसेंटेज डिक्लाइन इन मार्जिन बताना है, तो परसेंटेज डिक्लाइन कितने का हो रहा है, पहले 80 का 10% यानी कि 8 होगा, अब 7 हो गया, तो डिक्लाइन हुआ है 8 माइनस 7 अपॉन 8, यह आएगा 1/8, दैट इज 12.5%। ओके, अभी तक क्वेश्चन इजी चल रहा है, फेयरली इजी है। ये भी हो गया हमारा। इफ प्रपोर्शनेट कॉस्ट रिडक्शन प्लान इज अप्लाइड देन कैलकुलेट प्लान्ड कॉस्ट रिडक्शन फॉर ईच कॉस्ट कैटेगरी। एक्सप्लेन प्रपोर्शनेट कॉस्ट रिडक्शन प्लान। तो इसमें क्या होता है, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि हर एक ही वेरिएबल हो गया है और उसके हिसाब से हम लोग प्रपोर्शनेटली जितना कॉस्ट रिडक्शन करना है हर एक में डिवाइड कर देते हैं। ओके, दैट इज योर प्रपोर्शनेट कॉस्ट रिडक्शन प्लान। एक्सप्लेनेशन में ये जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखना है आपको अपनी लैंग्वेज में। एंड वाइल कैलकुलेटिंग व्हाट यू हैव टू डू इज, पहले हमारा कॉस्ट था 72, अब हो चुका है 63, रिडक्शन आया 9 का, तो परसेंटेज कितना डिक्लाइन हो रहा है, ये भी 12.5% आता है। ठीक है, सो आई हैव टू डू इज हर एक में 12.5% का मुझे डिक्लाइन लेके आना है, बस सिंपली। तो अल्टीमेटली मेरा टोटल कॉस्ट 63 पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यही टेबल बनाना है, हर एक में 12.5% का डिक्लाइन करते हुए। एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, जैसे 22 माइनस 12.5% हो गया 19.25। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये आप कर सकते हैं। Then last part, based upon discussion taken place among the functional manager, evaluate the possibility of cost reduction in order to analyze the possibility of application of target costing. Also suggest course of action to adopt. तो टारगेट कॉस्टिंग क्या होता है, जहाँ पर हम लोग सबसे पहले प्राइस निकालते हैं, इसमें से मार्जिन निकालते हैं, टारगेट मार्जिन बोलते हैं इसे, फिर हम लोग टारगेट कॉस्ट पर पहुँच जाते हैं। टारगेट कॉस्ट पर पहुंचने के बाद हम लोग रीडिज़ाइन करते हैं या फिर डिज़ाइन करते हैं अपने प्रोडक्ट को अकॉर्डिंगली, ताकि हम लोग टारगेट कॉस्ट को मीट कर सकें। क्योंकि टारगेट कॉस्टिंग में क्या कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा कॉस्ट एक प्रोडक्ट की कमिट हो जाती है एट द डिज़ाइनिंग स्टेज। ऑलराइट, तो अभी हम लोग कौन से स्टेज पर हैं, हम लोग अभी कैलकुलेट कर चुके हैं कि हमारा टोटल कॉस्ट क्या आना चाहिए, हमने टारगेट कॉस्ट निकाल दिया। ठीक है, तो हम लोग थर्ड स्टेज पर है, यहाँ पर प्राइस निकाल दिया 70, मार्जिन निकाल दिया 10% 7, टारगेट कॉस्ट निकाल दिया 63, बट वी हैव नॉट रीडिजाइंड एज ऑफ नाउ। उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हर फंक्शनल मैनेजर की बात लेते हैं और उस पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला जो फंक्शनल मैनेजर है वो है प्रोडक्शन और ऑपरेशन वाला। वो बोल रहा है कि हमें कॉस्ट रिडक्शन करना चाहिए। कॉस्ट रिडक्शन करने के लिए वो सेम बात बोल रहा है कि अगर हम कॉस्ट रिडक्शन करते हैं तो फिर रिडक्शन हो सकता है क्वालिटी के अंदर, राइट। तो अगर हम लोग ये मान ले कि हम लोग जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है अभी उसका कॉस्ट मैनेज करने के लिए हम लोग आउटसोर्स अगर कर देते हैं और वो हमको कम कॉस्ट में करके देता है, तो भी ये पॉसिबिलिटी है कि उसका क्वालिटी खराब हो सकता है, राइट। एंड वी हैव टू फोकस ऑन क्वालिटी, वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी। तो उसकी जो बात है वो सही है। फिर एक और बंदा आया, उसने कहा, मैनेजर ऑफ क्वालिटी ने, उसने कहा कि हमें इंस्पेक्शन स्टाफ इंक्रीज कर देना चाहिए। डेफिनेटली उससे आपका जो है डिफेक्ट्स वो बहुत कम हो जाएगा और रीवर्क कॉस्ट कम हो जाएगा, बट एट द सेम टाइम आपका इंस्पेक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो अगर इंस्पेक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है तो मुझे यहाँ पर एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना होगा, जिसके बेसिस पर प्रोबेबली मुझे देखना होगा कि क्या मैं कॉस्ट इतना कम कर पा रहा हूँ।
क्योंकि अल्टीमेटली आपको कॉस्ट कितना कम करना है, इतना, राइट। और ये थोड़ा सा फीजिबल नहीं दिख रहा अगर मैं बात करता हूँ इंस्पेक्शन कॉस्ट की, तो राइट। उसके अलावा हमें बताया गया है कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने बोला है मैच्योर प्रोडक्ट है, बहुत सारे कॉस्ट कमिटेड है, और वो दिखता भी है। वो ऐसे दिखता है क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल आप देख रहे हो 22 आउट ऑफ 72, तो बहुत मेजर कॉस्ट है। ये भी अप्रोक्सीमेटली 20 हो जाता है आउट ऑफ 63, तो बेसिकली अप्रोक्सीमेटली 30% कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ मटेरियल का है। और अगर ऐसा होता है तो दो चीज़ें हो सकती है, दोनों की बात सही निकल सकती है। पहला, जो प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजर है वो जो बोल रहा है कि क्वालिटी ख़राब हो सकती है, उसका रीज़न डेफिनेटली हो सकता है कि मटेरियल क्योंकि मेजर कॉस्ट है। अगर हम आउटसोर्स भी करते हैं या फिर कॉस्ट रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं तो अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट लाना होगा वो मटेरियल से आएगा, और हम लोग इसके लिए मटेरियल थोड़ा कम क्वालिटी वाला यूज़ कर लेंगे, है ना, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारे प्रोडक्ट का क्वालिटी थोड़ा सा डिग्रेड हो सकता है। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट व्हाट मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज सेइंग, वो ये बोल रहा है कि बहुत सारे कॉस्ट कमिटेड है और ये दिखता है, इसके लिए वो बोल रहे हैं कि रीडिज़ाइन कर दो प्रोडक्ट को। बट अगर रीडिज़ाइन कर देते हैं तो जैसा कि मार्केटिंग मैनेजर ने बोला है कि प्रोडक्ट का अपीयरेंस है जिसकी वजह से प्रोडक्ट सेल होता है, तो फिर हमें शायद रीडिज़ाइन नहीं करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम अगर ये पता लग जाए, जो कि ऐसा दिखता नहीं है, बट ये पता लग जाए कि दे आर नॉट कंसिडरिंग कि कैसा दिख रहा है, दे आर ओनली कंसिडरिंग, दे बाय दे आई मीन कस्टमर्स, दे आर ओनली कंसिडरिंग कि कॉस्ट कम हो जाए, प्राइस कम हो जाए, तो फिर वो लोग अगर सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट कॉन्शियस है तो हम लोग फिर ट्राई करेंगे कि रीडिज़ाइन कर दें। रीडिज़ाइनिंग में अगर हमारा कॉस्ट कम होता होगा तो हमें वहाँ से बेनिफिट मिल जाएगा, राइट। तो फिर हम लोगों को इस तरह से, बट बेस्ड ऑन दी एनालिसिस ये दिख रहा है कि वो लोग कॉस्ट कॉन्शियस हैं, राइट, क्योंकि वो लोग वही खरीद रहे हैं जो चीप रेट पर मिल रही है। बट एट द सेम टाइम जो मार्केटिंग के मैनेजर ने कहा है कि वो पॉपुलैरिटी का रीज़न ही सिर्फ उसका अपीयरेंस है, तो फिर इस पॉइंट के ऊपर और ज़्यादा रिसर्च थोड़ा करना पड़ सकता है, जिसके बेसिस पर हम ये समझ पाएंगे कि कॉस्ट कॉन्शियस कस्टमर्स कितने ज़्यादा हैं और अपीयरेंस का कितना ज़्यादा रोल है। अगर हम लोग अपीयरेंस सेम रख के भी थोड़ा बहुत रीडिज़ाइन कर पाएँ, अपीयरेंस अगर चेंज कर दें, तो फिर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी सेल्स के ऊपर, राइट। सो दैट इज़ द थिंग। अल्टीमेटली अगर आप टारगेट कॉस्टिंग अप्लाई करते हो तो आपको क्या करना होगा, आप वैल्यू इंजीनियरिंग, काइजन कॉस्टिंग, ये वाले प्रिंसिपल्स लगा सकते हो। शुरुआत में आप डिज़ाइनिंग के टाइम पर वैल्यू इंजीनियरिंग लगा सकते हो, फंक्शनल एनालिसिस लगा सकते हो, बट उसके बाद में एक बार आपने अप्लाई कर दिया तो फिर आपको कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए आपको काइजन कॉस्टिंग के ऊपर जाना होगा, या फिर आप जा सकते हो जस्ट इन टाइम के ऊपर, राइट। तो कुछ इस तरह के पॉइंट्स आप मेंशन कर दोगे अपने लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट पार्ट जो है वहाँ पर हम लोग इवेल्युएट कर रहे हैं पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिडक्शन में हमें क्या दिखता है, अल्टीमेटली वो यही दिखता है कि हमें वैल्यू एनालिसिस करना चाहिए जिसके बेसिस पर हमें कॉस्ट रिडक्शन लेके आना चाहिए, राइट। दिस इज ओवरऑल हम लोग एक कंक्लूजन दे सकते हैं। बट उसके पहले जितना डिस्कशन हमने किया, हर मैनेजर जो भी बात बोल रहा है उसका फेवर वाला पॉइंट क्या है, उसका जो भी उसका अनफेवरेबल वाला जो पॉइंट है वो क्या है, वो दोनों पोर्शंस को डिस्कस करने के बाद में अल्टीमेटली आपको कोई कंक्लूजन देना है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार इनका देख लेते हैं। इनका एक्स आ गया 80, फिर न्यू प्राइस 70 आ गया, 63 आ गया टारगेट कॉस्ट, 12.5% का डिक्लाइन आ गया मार्जिन में। ऑलराइट, हर एक में इन्होंने रिडक्शन कर दिया 12.5% के, 19.25 अपन ने कैलकुलेट कर लिया था, ओके। फिर उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि प्रोपोर्शनेट रिडक्शन प्लान में क्या होता है, प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस किया जाता है। प्रिजम्पशन लेना पड़ता है यहाँ पर कि सारा कॉस्ट अवॉइडेबल है, ठीक है, सारा कॉस्ट अवॉइडेबल है वो मान के हम लोग यहाँ पर करते हैं, अवॉइडेबल है तभी हम लोग रिड्यूस कर पा रहे हैं इसको। ऑलराइट, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिडक्शन में ये सारा डिस्कशन यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले टारगेट कॉस्टिंग के बारे में ही मेंशन है, उसके बाद में मार्केटिंग अकाउंटेंट की बात के ऊपर यहाँ पर बात की गई है। तो ये बोल रहे हैं मटीरियल ओरिएंटेड प्रोडक्ट है 30% ऑफ टोटल कॉस्ट, जो हमने लिया था कंसिडरेशन में। उसके बाद में गेन शेयरिंग अरेंजमेंट और आउटसोर्सिंग की बात की गई है। फिर इसके कॉन्ट्रास्ट में वही लिखा है कि कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है क्वालिटी, एंड इसके लिए हमें JIT पर शिफ्ट होना चाहिए, ठीक है, जो हमने बोला। और उसके बाद में क्वालिटी मैनेजर की बात की गई, जहाँ पर इंस्पेक्शन स्टाफ का वो बोल रहा था, बट
अगेन यहाँ पर ये बोल रहा है कि इंक्रीज आ जाएगा कॉस्ट में अगर हम लोग एडिशनल इंस्पेक्टर्स लगाते हैं तो इसके लिए हमें TQM और काइजन कॉस्टिंग लगाना चाहिए, जिससे हमारा क्वालिटी इम्प्रूव होते जाए विदाउट विदाउट हायरिंग और प्लेसिंग एडिशनल इंस्पेक्टर्स। तो अपॉइंट नहीं करना पड़ेगा इंस्पेक्टर्स को। उसके बाद में चीफ इंजीनियर का भी कुछ सजेशन था। वो कह रहा था कि टारगेट कॉस्टिंग इज़ मोस्ट बेनिफिशियल, क्योंकि बहुत सारा कॉस्ट कमिट हो जाता है डिज़ाइनिंग स्टेज पर, राइट। तो बहुत सही बात है ये, पर नॉट फीजिबल फ्रॉम द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट एज पर स्टेटमेंट मेड बाय मार्केटिंग मैनेजर। मार्केटिंग मैनेजर कंडक्ट करेगा रिसर्च ये देखने के लिए कि प्राइस सेंसिटिव है या फिर उनका जो रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट का, जिस तरह से दिखना चाहिए अपीयरेंस, उसका ज़रूरी होना है। तो ऑल दो प्राइस सेंसिटिविटी दिख रही है, बट फिर भी उसको रिसर्च करना चाहिए जो हमने बात की थी, एंड अल्टीमेटली रीडिज़ाइन ऑप्ट कर सकते हैं अगर प्राइस सेंसिटिविटी ज़्यादा है तो। बट अगर कन्फॉर्मेंस टू नीड इज़ इम्पॉर्टेंट तो फिर वैल्यू चेन एनालिसिस करेंगे टू आइडेंटिफाई एक्टिविटीज़ जो कि वैल्यू ऐड नहीं कर रही, और इनको एलिमिनेट कर देंगे टू रिड्यूस कॉस्ट। ठीक है, अल्टीमेटली इन्होंने क्या बोला है, देयर आर पॉसिबिलिटी टू रिड्यूस द कॉस्ट इवन इफ नॉट इन ऑल कॉस्ट कैटेगरी देन श्योरली इन सम ऑफ कैटेगरीज टारगेट कॉस्ट कैन बी अचीव्ड। इस तरह से इन्होंने पूरा सोल्यूशन दिया है। तो हम लोगों ने जिस तरह से डिस्कस किया था वही सब करना है यहाँ पर। ऑलराइट, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पैक्स इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड IEL is manufacturing wide varieties of torches operated on power batteries specially designed for trekking and travelers, apart from domestic use, for which they purchase bulbs from Glow Lights and Bulbs GLB, mostly G3 1M screw 7.5 volts bulb is used in torches. Due to lockdown and outbreak of COVID, the demand of torch falls significantly and factories allowed to work at one-third of capacity. Considering the same, production department slows down the production, causing a huge piled up inventory of raw material. This will be expected to result in high storage cost. Hence, to attain cost effectiveness, IEL decided to move from tradition system to JIT system. तो JIT के ऊपर क्वेश्चन लिया है ये लोग in a phased manner. There are two major departments, एक है परचेज, एक है प्रोडक्शन। हमने पिछले पार्ट में एक और JIT का क्वेश्चन देखा था जहाँ पर JIT परचेजिंग और JIT प्रोडक्शन का रोल था। इन द फर्स्ट फेज परचेज डिपार्टमेंट इज कंसिडरिंग द अडॉप्शन ऑफ JIT परचेजिंग। फिर एनुअल डिमांड ऑफ G3 1M screw 7.5 volt bulb is 24,000 units at IEL. Presently, purchase price is 80 rupees per bulb. Currently, the annual demand is ordered in 24 orders of equal size, and the cost of placing an order is rupees 10, which is expected to remain same in JIT Regime 2. Material handling, insurance and other carrying cost is rupees 2, rupees 1 and rupees 1.5 respectively per unit per annum. Under the JIT system, the price expected to increase to 80.5 rupees per bulb. GLB is a reputed company for the quality of its product and timely delivery. As a result of frequent orders, the number of orders increased to 120 under JIT, and order size decreased proportionately. Material handling cost is expected to reduce to 1.2 rupees, whereas other carrying cost will reduce by rupees 0.5. Insurance cost remain at the same level. Lower inventory level will cause a stock out cost of rupees 5 per unit on 0.25% of annual demand. Required rate return for IEL is 16%. फर्स्ट पार्ट में पूछा, इज द JIT प्रोसेस डिफरेंट फॉर द परचेज एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, स्टेट द रीजन। तो डेफिनेटली अलग है, क्योंकि परचेज ऑल्दो अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम ही है कि हमें जितना चाहिए उतना ही खरीदेंगे या बनाएंगे, स्टॉक करने के लिए नहीं बनाएंगे, पुल सिस्टम के ऊपर वर्क करेंगे। बट परचेजिंग के लिए अलग है, प्रोडक्शन के लिए अलग है, और वो उनके फंक्शन के ऊपर ही डिपेंड करता है। परचेजिंग का काम है परचेज करना, तो वो तब परचेज करेंगे जब रिक्वायरमेंट होगी फॉर मैन्युफैक्चरिंग। प्रोडक्शन वाले तब परचेज करेंगे, तब बनाएंगे जब भी रिक्वायरमेंट होगी टू सेल टू द कस्टमर्स, राइट। तो ये इतना सा ही पॉइंट था। पार्ट बी में स्टेट एनी 3 एरियाज इन विच JIT परचेजिंग में रिड्यूस कॉस्ट सिग्निफिकेंटली टू ब्रिंग द कॉस्ट एफिशिएंसी।
ठीक है, तो कैरिंग कॉस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, ऑलराइट। 3 एरियाज है, तीसरा भी बता देते हैं। तो तीसरा अपना जीआईटी की वजह से अपने जो वेस्ट होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है, तो मोशन रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरहेड कॉस्ट भी रिड्यूस होता है, ठीक है। सो 3 एरियाज बता दिए, आप और भी लिख सकते हो अगर आपके दिमाग में कुछ आता है तो। लास्ट पार्ट है कमेंट वेदर परचेज डिपार्टमेंट ऑफ आईईएल शुड मूव टू जेआईटी परचेजिंग प्रेज्यूमिंग द सेम एनुअल डिमांड। कैलकुलेशन करना है यहाँ पर, तो 2 पार्ट्स बनाने, एक है प्रेजेंट, एक है जीआईटी। फर्स्ट इज ऑर्डर कॉस्ट, उसके बाद में परचेज कॉस्ट, ऑलराइट। ऑर्डर कॉस्ट कितनी पड़ रही है? प्लेसिंग कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज ₹10 विच इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन सेम, ऑलराइट। बट हम लोग यहाँ पर कितने ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं? पहले 24, और यहाँ पर अब कितने कर रहे हैं? 120, ठीक है। तो इसका जो कॉस्ट आएगा वो तो 24 × 10, और इसका आएगा 120 × 10, ओके। उसके बाद में परचेज कॉस्ट है, तो परचेज कॉस्ट पहले 80 है, अब 80.5 है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। 24,000 × 80 दैट इज 192,000 and 24,000 multiplied by 80.5, ये आ जाएगा 1,932,000, ओके। सो नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। उसके बाद में कैरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट में मटेरियल हैंडलिंग है, अदर कैरिंग कॉस्ट है, तो मैं इसको अदर बना देता हूँ, नीचे मटेरियल हैंडलिंग लिख देता हूँ, और उसके अलावा इंश्योरेंस कॉस्ट है, तो इंश्योरेंस तो सेम ही रहने वाला है, हमें बता दिया है, तो फिर उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। मटेरियल हैंडलिंग अब 1.2 पे आ गया है, पहले था 2 पे, तो इसको एवरेज लेना पड़ेगा। अभी 24 ऑर्डर्स अगर करते हैं, 24,000 का रिक्वायरमेंट है तो 1,000 यूनिट्स हम लोग हर बार ले रहे हैं, उसका एवरेज कर लो, 500 आता है। 500 मल्टीप्लाइड बाय 2, एम आई राइट? तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 2, आप टोटल करके भी कर सकते हो, तो इसको हम लोग एक्चुअली वही करते हैं, टोटल करके ही करते हैं। इजी हो जाएगा करना, राइट? टोटल करके कर लेते हैं, तो 2 + 1 इज 3 एंड दिस इज 4.5, और 4.5 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 500, यह आता है 2250। और यहाँ पर क्या हो रहा है? 1.2, ये 1 ऐसा का ऐसा है तो 2.2, और ये 1.5 में से 0.5 से रिड्यूस हो गया, तो ये 1 हो जाएगा, तो यह है 3.2, एंड 3.2 वुड बी मल्टीप्लाइड बाय जस्ट 100, तो आएगा 320। 100 क्यों? क्योंकि 120 ऑर्डर्स है, 24,000 डिवाइडेड बाय 120 इज 200, 200 का एवरेज कर दो तो 100 आ जाएगा, 320 आ गया कैरी कॉस्ट, जिसमें हम लोगों ने इन तीनों ही चीज़ों को ले लिया है। उसके बाद में एक स्टॉक आउट कॉस्ट बताया, तो स्टॉक आउट कॉस्ट भी देख लेते हैं, दैट इज 0.25% ऑफ एनुअल डिमांड। यहाँ पर तो कुछ नहीं, इंटू 0.25%,
इंटू 5, 5 ही है ना, तो 300 आता है। ठीक है, तो ये हो गया टोटल। मुझे लगता है इसका जो डिफरेंस है उसके ऊपर हमें रिक्वायर्ड रेट जो 16% का है वो ले लेना चाहिए, क्योंकि इतना अगर कॉस्ट सेविंग हुआ तो उसके हिसाब से फिर मैं उसके ऊपर 16% का बेनिफिट ले लूँगा। तो 1920000 प्लस 240 प्लस 2250 1922490 1200 plus 1932000 plus 320 plus 300, तो ये आता है 1933820। तो आई थिंक ये तब जब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक हम लोग 16% का ये बेनिफिट ले नहीं लेंगे, राइट। अब सवाल ही उठता है कि 16% का बेनिफिट कहाँ लेना चाहिए। तो मुझे लगता है 16% का बेनिफिट हमें मिलेगा अपने वर्किंग कैपिटल के ऊपर। ओके ओके, ये 80.05 है, 80.5 नहीं है। दिस इज सपोज टू चेंज। ये आएगा 1921200 प्लस 1200 प्लस 320 प्लस 300, ये आता है 1923020 1923020। ऑलराइट, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अब हमें वर्किंग कैपिटल के ऊपर वो 16% का बेनिफिट लेना पड़ेगा। जो 16% का कॉस्ट लग रहा है, बेनिफिट क्या, वो कॉस्ट लग रहा है। सो वी हैव टू टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। अदरवाइज जो सेविंग आता है JIT से, उसके ऊपर हमें 16% का बेनिफिट ऐड करके और अल्टीमेटली बता देना चाहिए था कि ये बेनिफिट है JIT का, बट लेट्स सी। तो 1921200 का 16%, बट यहाँ पर हम लोग जो वर्किंग कैपिटल लगा रहे हैं डैट इज़ ओनली फॉर 100 यूनिट्स, राइट। तो मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स विच इज़ 24,000, मल्टीप्लाई करूँगा बाय 100, तो ये आ जाएगा मेरा 1280। और इधर क्या आएगा, 1920000 multiplied by 16% divided by 24,000, and this I will have to multiply by 1000, sorry, तो ये आएगा 6400 multiplied by 500। तो अब हमें शायद डिफरेंस दिख जाए, ये हो जाएगा 1928890, ये हो जाएगा 1924300। तो अब सेविंग दिख रहा है, और ये सेविंग हो गया 1928890 माइनस 1924300 विच इज़ 4590। तो 4590 का सेविंग दिखता है JIT सिनेरियो में। ऑलराइट, तो कुछ इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये लोग क्या लिख रहे हैं, जस्ट इन टाइम के ऊपर पुल सिस्टम है एंड डिफरेंट फॉर परचेज एंड प्रोडक्शन, फंक्शन के नेचर की वजह से पर्पस सेम ही। JIT परचेजिंग में material should only be purchased when required for production, finished product should only be produced needed to meet actual customer demand। okay, फिर कहाँ पर सेविंग हो सकती है, इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, स्टोरेज कॉस्ट जिसको हम कैरी कॉस्ट बोलते हैं, उसके अलावा वेस्टेज एंड स्क्रैप का कॉस्ट सेव कर सकते हैं, उसके अलावा लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट भी सेव कर सकते हैं। ऑलराइट, तो हमने 3 कवर कर लिए थे, इन्होंने 4 लिखे हैं, बोला 3 का था। ओके, उसके बाद में
परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, फिर ये जो हमने कैलकुलेशन किया 16% वाला वो आया अपॉर्चुनिटी कैरिंग कॉस्ट। अदर कैरिंग कॉस्ट में हमने, इन्होंने भी साथ में किया हुआ, हमने भी साथ ही किया था। ओके 4589.20 हमारा क्या था 4590। ओके सो सेम है, द आंसर इज सेम। डिसीजन देना है, इंक्रीमेंटल सेविंग्स ऑफ इकोनॉमिकली वायबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रॉयल बेकर्स इज फेमस फॉर केक्स एंड कुकीज। मिस्टर दास द ओनर एट रॉयल बेकर्स इज इंटरेस्टेड इन ऑफरिंग अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स टू देयर कस्टमर्स, hence keen to capture the small scope of cost effectiveness. Royal Bakers, located in the center of the city where space has a huge cost and Royal Baker is running out of space during peak hour, causing loss of sale. Most of the customers are regular to Royal Bakers. Royal Baker is known for fast service. Mr. Das wish to be true to the tagline, close your eyes to wish and open them to find it cooked for you. The hurdle rate is 12%. ये hurdle rate क्या होता है? Cost of capital. Non-availability of skilled worker and high attrition rate of worker including chef is the cause of worry for Mr. Das. In order to retain worker, Royal Baker is paying a higher salary than industry average, industry standards. The raw material is easily available as and when it is required. Royal Baker is considering two different models of baking oven machine to replace its old oven. The baking capacity of both machines are the same. Both will occupy a similar amount of space. The first model is the automatic oven, which will cost about 10 lakhs. Automatic oven का cost है 10 lakhs. Another model is the semi-automatic. Cost at 5,60,000. The annual operating cost is this is including depreciation, is 40% of the acquisition cost and rupees 4,20,000 in case of automatic and semi-automatic. तो semi-automatic का ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा एनुअल 4,20,000, ऑटोमेटिक का हो जाएगा 40% ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट एंड दिस इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। एक्विजिशन कॉस्ट है 10 lakhs, उसका 40% क्या हो जाएगा 4 lakhs. After 3 years of use, automatic oven can be salvaged at rupees 70,000. Automatic cost 70,000, semi-automatic oven will fetch 20,000 only. Automatic oven is more advanced, equipped with latest technologies to speed up the baking because only ingredients need to be inserted in right proportion and mix, whereas in semi-automatic machine some part of the process needs to be performed manually by the workers. Advice, which oven shall Royal Baker acquire? तो यहाँ पर हमें एडवाइस करने के लिए बोला, इसलिए फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू भी देखेंगे और नॉन फाइनेंशियल भी देखेंगे. यू कैन इग्नोर टैक्सेस but need to consider the time value of money. Decimal accuracy up to 2 digits is expected. जो चलिए कैलकुलेशन करते हैं. ऑलराइट, सो 3 फेजेस है यहाँ पर. सबसे पहला तो है इनिशियल कॉस्ट, फिर एनुअल कॉस्ट और फिर है लास्ट में जो आता है ना जिसे सैल्वेज कह देते हैं. ठीक है, शुरुआती का जो कॉस्ट लगने वाला है, इनिशियल जो लगने वाला है, उसके ऊपर तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कोई फ़र्क नहीं आएगा, कोई डिस्काउंटिंग नहीं लगेगा. बट एनुअल कॉस्ट पे आपको डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी, सैल्वेज पे आपको डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी. तो ले लेते हैं. सेमी ऑटोमेटिक के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, ऑटोमेटिक के लिए ए लिख रहा हूँ. ओके, इनिशियल कॉस्ट, इनिशियल आउटफ्लो, जो भी आप कहना चाहें. सेमी ऑटोमेटिक का है 5,60,000, इसका है 10 lakhs. ऑलराइट, एनुअल कॉस्ट के लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा. राइट, तो एक तो डेप्रिसिएशन वाला पार्ट है और उसके अलावा एक पार्ट है जहाँ पर आपको एक्चुअली आउटफ्लो हो रहा है. ऑलराइट, तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? 560 माइनस 20, 540 डिवाइडेड बाय 3,
तो ये आता है 180, ठीक है। तो एनुअल कॉस्ट के लिए मैं एक अलग से टेबल बना रहा हूँ। ये तो आया 1,80,000, हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया ओरली। 10 lakhs में से 70,000 मिल रहा है, तो 9,30,000 डिवाइडेड बाई 3, ये आएगा 3,10,000। ओके, आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया हुआ है, दिस इज 4,20,000 एंड दिस इज 4 lakhs। ऑलराइट, अब आपको पता चल गया कि व्हाट इज द एक्चुअल आउटफ्लो। तो आउटफ्लो मेरा यहाँ पर तो हो रहा है 2,40,000 का, और यहाँ पर हो रहा है 90,000 का, ठीक है। अकॉर्डिंगली मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा अब। दैट इज समथिंग विच आई एब्सोल्युटली हेट, बट डिस्काउंटिंग करते हैं। $2,40,000 डिवाइडेड बाय 1.12, तो ये मेरा आता है 5,76,439, ठीक है। यहाँ पर मैं डिस्काउंटिंग पूरे की नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डिप्रिसिएशन कॉस्ट मेरा आउटफ्लो नहीं है, तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। आउटफ्लो जो हो रहा है उसके ऊपर करना है डिस्काउंटिंग। तो मेरा आता है 5,76,439.5, और 90,000 के ऊपर करना होगा 216,164.81। एक्चुअली 2 डेसिमल प्लेस का एक्यूरेसी चाहिए था। तो ये आता है एक्चुअली 50 ही आ रहा है, तो ओके। सो एनुअल कॉस्ट 5,76,439.50, 216,164.81, और फिर लास्ट में जो हमारा इनफ्लो हो रहा है ना, वो हमारा इसमें तो 20,000 हो रहा है, उसमें 70,000 हो रहा है, वी हैव टू डिस्काउंट इट। तो ये हो रहा है 14,235.60, इसको माइनस करेंगे, वहाँ पे भी 70,000 डिवाइड बाय 1.12, ओके। तो यहाँ से आपका आंसर आएगा। अब एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ रहा है। ऑलराइट, कितने का सेविंग्स है सेमी ऑटोमेटिक में? 44,136.29। इतना सेविंग्स मुझे सेमी ऑटोमेटिक में दिखता है। सो इकोनॉमिकली आई वुड गो फॉर सेमी ऑटोमेटिक, बट क्योंकि हमें एडवाइस करना है तो वी हैव टू कंसिडर द नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स ऑल्सो। तो बहुत सारे पॉइंट्स कवर करने पड़ेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट ले रहा हूँ मैं, वो ले रहा हूँ कि इनका एम्प्लॉयज़ का अट्रेशन रेट बहुत ज़्यादा है, राइट। सो वी डू नॉट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन आवर एम्प्लॉयज़। तो इन दैट केस अगर मैं सेमी ऑटोमेटिक लेता हूँ, आई विल स्टिल हैव टू डू सम वर्क मैनुअली, जिसके लिए मुझे एम्प्लॉयज़ पे डिपेंड होना पड़ेगा। ऑल्दो ये मैं नहीं कह रहा कि ऑटोमेटिक में एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंडेंसी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, बट कम हो जाएगी काफ़ी। सो आई हैव टू कंसिडर दैट पॉइंट फर्स्ट। सेकेंडली मुझे स्पेस का कंसिडरेशन करना है। सिमिलर लिखा है, सिमिलर अमाउंट ऑफ स्पेस, बट स्टिल नाउ आई वांट टू बी श्योर कि किसका स्पेस ज़्यादा लग रहा है,
ठीक है, जिसका ज़्यादा लग रहा होगा बिकॉज आई एम शॉर्ट ऑफ स्पेस, आई एम रनिंग आउट ऑफ स्पेस, तो उसके लिए मुझे कंसिडर करना होगा कि जिसका स्पेस कम है दैट इज़ देयर। उसके अलावा फिर हमें बोला है कि स्पीड अप करेंगे प्रोसेस को, राइट, बिकॉज हम लोग जाने जाते हैं फॉर फास्ट डिलीवरीज। ये कहाँ लिखा था, राइट, फास्ट सर्विस, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। रॉयल बेकर इज नोन फॉर फास्ट सर्विस। तो हम लोग कोशिश कर सकते हैं अगर ऑटोमेटिक अवन बहुत स्पीड अप करके और पूरा प्रोसेस कंप्लीट करता है, सो वी शुड गो फॉर द ऑटोमेटिक अवन, क्योंकि फास्ट सर्विस हमारा मोटो है। और जो ये लोग टैगलाइन बोल रहे हैं कि आप आंखें बंद करो और जो भी आपकी इच्छा होगी खोलते ही आपकी वो इच्छा हम लोग कुक करके दे देंगे, राइट। तो फिर अगर इतना फास्ट आपको सर्विस प्रोवाइड करना है, सो यू हैव टू गो फॉर ऑटोमेटिक वन। उसके अलावा क्योंकि बेकिंग है, तो बेकिंग के अंदर अपीयरेंस भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो फिर इन दैट केस मुझे देखना होगा कि मेरा अपीयरेंस जो है, जो भी चीज़ बन रहा है, अगर केक बन रहा है तो केक का अपीयरेंस, पेस्ट्री बन रहा है तो पेस्ट्री का अपीयरेंस, कुकी बन रहा है तो कुकी का अपीयरेंस, जो भी चीज़ है उसका अपीयरेंस आई विल हैव टू सी कि किसका बेटर आ रहा है। अगर ऑटोमेटिक ओवन का बेटर आ रहा होगा तो वो मुझे कंसिडर करना पड़ेगा। उसके अलावा मुझे देखना होगा कि अगर सेमी ऑटोमेटिक में, क्योंकि वो मैनुअली कर रहे हैं ना, तो वो एक कस्टमाइजेशन कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, तो उसके लिए फिर मुझे कंसिडर करना पड़ेगा। कस्टमाइजेशन से ये भी पॉइंट आता है कि अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ केक को ही बना सकते हैं ये अवन से, राइट, तो फिर इन दैट केस क्या हो जाएगा कि केक तो कस्टमाइज चाहिए होते हैं जनरली, तो फिर हमें सेमी ऑटोमेटिक की तरफ जाना चाहिए ऑटोमेटिक को छोड़ के। या फिर हम लोगों को देखना होगा कि टेस्ट किसका बेटर आ रहा है, क्योंकि ऑटोमेटिक इज ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक में थोड़ा बहुत मैनुअल वर्क होता है, तो किसका टेस्ट बेटर आ रहा है। उसके अलावा एरर्स, अगर ऑटोमेटिक के अंदर कोई एरर हो जाता है तो उसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है, क्योंकि सेमी ऑटोमेटिक में जहाँ पर मैनुअल इंटरवेंशन होता है तो जो भी हमारे शेफ्स होंगे या फिर जो भी वर्कर्स होंगे वो कुछ ना कुछ करके और उस एरर को एलिमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं। ऑल दो यहाँ पर रीवर्क कॉस्ट तो हम लोग इनकर नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पर किसी भी चीज़ को करेक्ट करना बेकरी के अंदर इज आई डोंट थिंक पॉसिबल। वहाँ पर फिर कुछ नया वापस से नया ही बनाना पड़ेगा आई थिंक। बट अगर वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिक में आ जाती है तो फिर नया बनाने का कॉस्ट है। सेमी ऑटोमेटिक में तो थोड़ा बहुत एरर अगर हो रहा होगा तो हम उसको कहीं ना कहीं एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये वाला भी कॉस्ट आ जाता है। उसके अलावा कोई पॉइंट अगर ध्यान में आ रहा है तो आप वो भी लिख सकते हो, जैसे कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ चुकी है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिक में अवेलेबल है, सेमी ऑटोमेटिक में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, राइट। सो बिकॉज सब कुछ टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है तो हमें ऑटोमेटिक की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज वो हमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है। ओके, सो वो भी एक फैक्टर है। तो इस तरह से आप बहुत सारे पॉइंट्स इस तरह के जो भी आपको लगता है कि बेकरी फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं वो बना के आप यहाँ पर डाल सकते हो, राइट। तो कॉस्ट हमारा कुछ अप्रोक्सीमेटली इतना ही आ रहा था। एंड ये देखिए, इसको आपको अलग करना पड़ेगा और फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऑल्दो दे हैड सेड कि हमें 2 डेसिमल प्लेस का एक्यूरेसी चाहिए, इन्होंने खुद ही नहीं लिया है, ठीक है, इन्होंने खुद ही अप्रोक्सीमेशन किया है। बट एनीवेज हम लोगों ने 2 डेसिमल प्लेस पर कर दिया है, यहाँ पर भी उन्होंने वही किया, आई डोंट नो व्हाई, बट एनीवेज। तो एक इन्होंने लुक और टेस्ट का बोल दिया, मैन पावर का भी बोल दिया, स्पेस का बोल दिया, ठीक है। एक पॉइंट इन्होंने बनाया पावर कंजम्पशन एंड अवेलेबिलिटी। तो पावर दोनों में लग रहा है, बट लेट्स से कि पावर अगर कहीं पर सप्लाई नहीं हो पा रहा है तो सेमी ऑटोमेटिक सिचुएशन में तो हम लोग मैनुअली काम करके और काम चला लेंगे, बट ऑटोमेटिक वाले सिचुएशन में क्या होगा कि हम लोग क्योंकि डिपेंडेंट है अब हमारे एक मशीन के ऊपर, मशीन विल स्टॉप वर्किंग, तो हमारा डिपेंडेंसी जो है अब हमारे वर्कर्स के ऊपर बढ़ जाएगा। और क्योंकि ऑटोमेटिक ले लिया है तो वर्कर्स हमारे पास में इतने हैं नहीं, तो अब आप लोग ऑर्डर्स को फुलफिल कैसे करोगे, राइट। कस्टमाइजेशन वाला पॉइंट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, स्पीड वाला पॉइंट कवर किया है, डिटेक्शन ऑफ डिफेक्ट वाला पॉइंट कवर किया है। तो एक ही पॉइंट रह गया था। इन्होंने ओवरऑल बोला है कि आपको ये सारे फैक्टर्स को केयरफुली कंसिडर करके ही डिसीजन लेना चाहिए। सो दिस कवर्स अप आवर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Sacred Heart Hospital SHH, a renowned multi-speciality hospital offering affordable healthcare service to one and all.
Despite charging reasonable prices, SHH is offering the best possible services to its clients. Hence, SHH is the undisputed choice among the resident for healthcare services. Since SHH is charging a reasonable fee, hence controlling and managing cost becomes critical for them, especially the cost involved in non value activities or activities not of principal nature. SHH has a core team of 32 specialist doctors, and some among them are resident doctors. The staff comprises an administration team of 15 members, apart from around 120 nurses supported by 40 to 50 grade 4 employees. Some of these support staff are casual workers and some are the resident staff. SHH is running an in house subsidies canteen for doctors and staffs exclusively, operates on all calendar days. This canteen was established during initial days of SHH because then the nearby areas are not fully developed. Only a few eateries were there, and either they are unhygienic or excessively costly. Due to extending urban municipal limits, scenario is changed now. Management of SHH is considering the two alternate, first being downsize the operation by cut down the choices to eat and reduction in subsidy, or outsource canteen to some external caterer. तो नॉन वैल्यू एक्टिविटीज़ में इन्होंने सिलेक्ट किया है कैंटीन. कैंटीन के दो ऑप्शंस निकाले, या तो हम डाउन साइज करके सब्सिडीज़ को रिड्यूस कर देंगे या फिर हम लोग कम्प्लीटली आउटसोर्स कर देंगे इस पोर्शन को. Patient's food is prepared by the dietary department and there is a separate canteen for attendant and visitors of patients. तो हम लोग अभी जिस बारे में बात कर रहे हैं, जिस कैंटीन की बात कर रहे हैं, that is only for doctors and staffs. ठीक है, एक्सक्लूसिवली भी लिखा हुआ है. हम लोग ये वाली कैंटीन को ले ही नहीं रहे. जो भी पेशेंट फूड है, विजिटर्स है, अटेंडेंट है, उसको हम लोग नहीं ले रहे. Current scenario. On daily basis, around 160 coupons for meal at rupees 40 and 120 coupons for snacks, accompanied with either tea or cold drink of rupees 20 is sold, apart from the sale of 2000 rupees for juices and biscuits, etc. These supplies cost 70% of sale prices. Canteen also incurs 25,000 for utilities and maintenance each month. Canteen works around the clock with mutual rotation among the staff. Meal is served during specified hours, whereas snacks, juices and biscuit are available throughout. तो अभी का क्या सिनेरियो है? 160 into 40, 120 into 20 and 2000. इसको ऐड करते हैं. तो ये आता है 10800. ये 10800 में से 70% तो सेल्स प्राइस है, और ये एक दिन का है. बाय द वे, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 365. तो आपका आ जाएगा 3942000. इसका 70% जो है वो कॉस्ट है, तो वो आता है 2759,400. आपका अल्टीमेटली कंट्रीब्यूशन कितना है? 1182600. ऑलराइट. और 25,000 मेरा हर महीने का मेंटेनेंस और यूटिलिटी का एक्सपेंडिचर है, सो डैट इज 3 lakhs. ऑलराइट. तो ये 1182 में से मैं माइनस कर देता हूँ. ये आता है मेरा 882600. ऑलराइट. इसके बाद भी कुछ अगर डेटा दिया है तो देखते हैं. प्रेजेंटली कैंटीन हैज अ स्टाफ ऑफ 7 members including a chef, helpers and cleaner. The monthly salary of these 7 staff members is 1,40,000. इसको भी माइनस करना होगा. तो 16,80,000 को माइनस करना है. ऑलराइट. उसके अलावा बताया SHH also contributes 9120 per month as statutory labor benefits. तो जो आएगा उसमें से 9120 multiplied by 12 भी माइनस करना है.
तो बहुत इनका तो लॉस जा रहा है। 600 माइनस 1680000 माइनस ये आता है मेरा 797400 और 9120 इंटू 12 इज 109440। ठीक है, ये नेगेटिव चल रहा है अब सब कुछ। तो मेरा फाइनली क्या आने वाला है 906840। ये मेरा लॉस आ रहा है। ओके, करंट सिनेरियो का। Downsize the operation by cut down the choices to eat and reduction in subsidy. With the aim to reduce the subsidy by at least 50%, the operation can be downsized by cut down the snacks from menu. The price of meal will also be increased by 5%. Cut down will reduce the staff requirement. Resultantly, monthly salary expenditure expected to reduce by rupees 63,500. Whereas SHH contributes to statutory labor benefits also reduced to rupees 5420. The average cost of supplies is increased by 3% of the sale price. So अब 73% हो गया. There is an increase in the sale of meal coupon by 30 coupons, largely due to the absence of alternate choice. Sale of juice and biscuit is also increased by 10%. Other aspects of operation remain the same. तो देख लेते हैं इसको करने के बाद हमारा क्या सिनेरियो दिखता है। राइट तो 160 पहले थे, अभी 30 से इंक्रीज हो गए तो 190 हो चुके हैं। ऑलराइट 190 मल्टीप्लाइड बाय, मेरे को 5% से प्राइस इंक्रीज करना है और 73% सेल प्राइस का वो होता है। ठीक है, सो माई प्राइस वॉज 40, आई वॉन्ट टू इंक्रीज इट बाय 5%, तो ये 42 हो जाता है। स्नैक्स हट चुका है और हमारे पास में बिस्किट्स का जो है वो 10% का इंक्रीज बताया है हमें। सो जूस एंड बिस्किट का पहले 2000 था, अब 2200 हो जाएगा। ठीक है, 7980 मल्टीप्लाइड बाय 365, 291270। ये सब 365 से मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है। ओके 2200 इंटू 365, 803000। उसके बाद में हमें बताया है कि 73% कॉस्ट है। सो इसका टोटल ले लेते हैं 291270 प्लस 803000। तो अगर 73% मेरा कॉस्ट है तो मैं डायरेक्टली 27% से कैलकुलेट कर रहा हूँ। That will give me 1003239। ओके, उसके बाद में हमें बताया है कि 63,500 से रिड्यूस हो रहा है। पहले 1,40,000 था, माइनस 63,500, 76,500 आ गया, ये एक महीने का है, मल्टीप्लाइड बाय 12, तो 918000। उसके अलावा हमें बताया कि 5420 पे वो पहुंच जाएगा। 5420 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज 65040। ऑलराइट, तो अब जो भी आ रहा है वो मेरा आंसर आने वाला है 1003239 माइनस 918000 माइनस 65040, ये आता है आपका 20199। ऑलराइट, तो थोड़ा तो यहाँ पर आपको फ़ायदा दिख रहा है। ऑलराइट, तो इस तरह से आपका ये वाला सिनेरियो दिखता है। बट क्या आपको ये करना चाहिए? अच्छा, हमें यहाँ पर पूछा है, हम उसके हिसाब से तो कर ही नहीं रहे, सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं। एडवाइज द मैनेजमेंट ऑफ SHH सपोर्टेड विद फॉलोइंग पॉइंट्स वेदर डाउन साइजिंग इज एक्सेप्टेबल और नॉट। तो डाउन साइजिंग एक्सेप्टेबल तो है इकोनॉमिकली, बट नॉन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अल्टीमेटली फिर जो हमारा पर्पस था कि जो हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं, स्पेशली जो ग्रेड 4 वाले स्टाफ मेंबर्स हैं और वर्कर्स हैं, उनके पॉकेट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ऑल्दो देयर इज एन इंक्रीज ऑफ ओनली 5% इन द मील रेट, बट फिर भी वो इफेक्ट पड़ेगा। वन थिंग इज दैट। सेकेंडली, अगर किसी को खाना नहीं खाना है, मील नहीं खाना है और स्नैक्स खाना है, तो हमारे पास में ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि मील ऐसी चीज़ है जो कि हर वक्त आपको नहीं मिलती। मील कुछ पर्टिकुलर आवर्स पे मिल सकती है, बट स्नैक्स आपको कभी भी मिल सकते हैं। राइट,
तो अगर मैं ऑड आवर पे चले गया तो मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं होगा. सो आई डोंट थिंक दिस इज़ अ वेरी नाइस ऑप्शन. लेट्स सी आउटसोर्सिंग का क्या सीन है. बट उसके पहले वेदर एसएचएच एबल टू रिड्यूस द सब्सिडी बाय 50%, तो हम लोगों ने कर दिया है वो. वी हैव रिड्यूस्ड द सब्सिडी बाय 50% क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो है अब ये प्रॉफिट ही दिख रहा है. आई होप आई हैव नॉट स्किप्ड एनीथिंग. कुछ मिस आउट कर दिया क्या? 25,000 हमारा मिस आउट हो गया अभी भी. ऑलराइट, तो ये दिस इज नॉट द फाइनल आंसर. 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज 3 lakhs. ऑलराइट, तो ये एक्चुअली आता है 279,801. अभी भी लॉस आ रहा है बट फिर भी कंपैरेटिवली अभी भी बेटर ही है. तो अभी डिफरेंस कितने का हो चुका है? अभी हमारा लॉस रिड्यूस हो गया 6,27,039 रुपीज़ से. तो डेफिनेटली ये मतलब इसमें कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है. 50% से ज़्यादा हम लोग रिड्यूस कर पाए सब्सिडी, जो हमारा पर्पस था. क्वालिटेटिव फैक्टर्स जो थे वो मैंने आपके साथ में ऑलरेडी डिस्कस कर दिए फर्स्ट पार्ट में ही. तो प्रोबेबली उन्होंने यहाँ पर सिर्फ इकोनॉमिकली पूछा था. एडवाइज द मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स सपोर्टेड विद फॉलोइंग पॉइंट्स. क्या हमें ये बेनिफिशियल लगता है या नहीं लगता है? दैन डाउन साइजिंग. हाईलाइट 2 नॉन मॉनिटरी फैक्टर्स टू कंसिडर प्रायर टू आउटसोर्सिंग. ओके, तो ये वाला कैलकुलेशन भी कर लेते हैं. 4 proposals are received, out of which only found suitable by the screening committee, which also meets all the established criteria. Such a proposal is from Annapurna Caterers. They offered an annual lease value of rupees 1,68,000 and share of 2% in revenue. तो एक तो 1,68,000 वो लोग दे रहे हैं, उसके अलावा वो शेयर दे रहे हैं 2% इन रेवेन्यू में. On only 20% of monthly utility and maintenance expenditure pertaining to canteen will be recovered from Annapurna Caterers. तो 80% अभी भी हम लोग बेयर करें, 20% रिकवर करेंगे. It is expected by Annapurna Caterers that it will be able to sell 150 meals at 50 each. Okay, एक तो ये हो गया. 100 snacks at 30 each. उसके अलावा हो गया 2,500 ऑन डेली बेसिस. ठीक है, तो 4,745,000 इसका मुझे वो दे रहे हैं 2%, तो कुछ दे रहे हैं 94,900. उसके अलावा मुझे वो लोग दे रहे हैं 168,000 एनुअल वैल्यू है ये 168,000 एंड 80% मेरा अभी भी मेंटेनेंस का लग रहा है. सो 25,000 इंटू 80% इंटू 12, 2,40,000. तो फाइनली हम लोग शायद प्रॉफिट में पहुंच चुके हैं. 94,900 प्लस 168,000 माइनस 2,40,000, ये आता है 22,900. ओके, तो ये हमारा आंसर हो चुका है इसका. दिस इज बेनिफिशियल दैन डाउन साइजिंग इकोनॉमिकली. और मुझे लगता है कि अगर हम लोग नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स से देखें तो भी क्वालिटेटिव फैक्टर्स से भी मुझे बेनिफिशियल लगता है. ऑल दो दैट इज़ वन थिंग कि ये 50 का हो जाएगा, जो मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा है. एंड क्योंकि हम लोग आउटसोर्स कर रहे हैं अब, तो वो लोग अपने हिसाब से सेल करेंगे एंड दिस विल प्रोबेबली लाइक बी नॉट बेनिफिशियल फॉर द ग्रेड 4 वर्कर्स और जो हमारे लोअर लेवल वाले वर्कर्स हैं उसके लिए, क्योंकि अब थोड़ा सा एक्सपेंसिव दिख रहा है. राइट, हम लोग पहले सेल कर रहे थे सिर्फ 40 पर और ये लोग 50 पर कर रहे हैं. उसके अलावा हम लोग स्नैक्स दे रहे थे 20 पे, ये लोग 30 पे कर रहे हैं. तो कुछ डिफरेंस दिखता है, बट इसमें हमें कुछ फैक्टर्स जो कंसिडर करने चाहिए प्रायर टू आउटसोर्सिंग. वन इज क्वालिटी, कि कैसा क्वालिटी का प्रोडक्ट देने वाले हैं. ठीक है, उसके अलावा हमें क्योंकि दो ही बताने, एक तो क्वालिटी हो गया और उसके अलावा हम बता सकते हैं कि क्या ये लोग इनके जो वर्कर्स हैं, जो हमारे पास में वर्कर्स हैं अभी जो कैंटीन में काम करते हैं, क्या उनको रीट्रेंच किया जाएगा. राइट, तो क्योंकि और क्वालिटेटिव फैक्टर्स जो यहाँ पर था हमारा डाउन साइजिंग वाला, वहाँ पर भी हम लोग रीट्रेंचमेंट वाला पॉइंट लेके आ सकते हैं. क्योंकि अगर हमने स्नैक्स वाला पोर्शन बंद कर दिया तो हमें इतने स्टाफ की ज़रूरत नहीं होगी. तो क्या उन्हें निकाल दिया जाएगा या फिर रखा जाएगा, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में डाला जाएगा.
सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग आउटसोर्स कर देते हैं तो हमारे पास जो स्टाफ था उसका क्या उसको हायर कर लेगा अन्नपूर्णा केटरर्स, या फिर हम लोग उन्हें किसी दूसरे डिपार्टमेंट में डाल देंगे या फिर उन्हें निकाल दिया जाएगा। तो ये देखने वाली बात है। अज्यूमिंग इट इज़ अ नॉन लीप ईयर कंप्राइजिंग 365 डेज, तो अच्छा है अपन ने 365 से ही किया था, बट आई थिंक यहाँ से हमें ये सीख लेना चाहिए कि पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही कुछ कैलकुलेशन करें। ऑलराइट, तो ये पहला लॉस। ओके, फिर सेकंड लॉस उनका ये आया, हमारा भी वही आया था। उसके बाद में ये वाला पोर्शन हम लोगों ने इसका आंसर कैलकुलेट नहीं किया था बट क्लियरली दिख रहा था। उसके बाद में इन्होंने रिट्रेंचमेंट की बात करी क्वालिटेटिव में, माइनर प्राइस इंक्रीज इम्पैक्ट ऑन पॉकेट, रेसिडेंट डॉक्टर्स एंड रेसिडेंट स्टाफ, जिनको बात वही चल रही है कि स्नैक्स को हटा दिया है ना, तो स्नैक्स अवेलेबल नहीं होगा कुछ तो मील्स कुछ ही आवर्स पे अवेलेबल होगा और बाकी टाइम पे स्नैक्स अवेलेबल होगा ही नहीं, वो वाला पॉइंट लिखा है थर्ड में। उसके बाद में ये 22,900 इनका आ गया, मोर बेनिफिशियल और मे ऑल्सो गिव वेट टू क्वालिटेटिव एंड नॉन मॉनिटरी क्वांटिटेटिव फैक्टर्स। तो ये पॉइंट इन्होंने भले ही से क्वालिटेटिव फैक्टर्स को यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है बट ये वाला पॉइंट लिखना ज़रूरी हो गया, राइट। उसके बाद में क्वालिटी, प्राइस इंक्रीज्ड, प्रेजेंटली एंगेज्ड उनको रिट्रेंच करेंगे या नहीं करेंगे, लीगल इम्प्लीकेशन। तो कुल मिला के आपका ये होता है सोल्यूशन टू दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Ajanta Digital Solutions is a renowned name for manufacturing a wide variety of digital stationery products for office and academic use. The Abacus division of ADS is engaged in the production of basic calculators capable of academic and commercial use. Presently, Abacus is manufacturing only three models named C100, C125, and C500. These calculators are sold to customers through widespread retailers and distributors network across the country. During manufacturing process, each calculator needs to pass through various steps before it gets ready. PCIA is the essential step and performed manually, where processing chip is being installed, activated and tested. The production capacity of Abacus is constrained by PCIA. तो अपने को theory of constraint के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है। The basic information pertaining to top line and the prime cost is as follows: selling price, material cost, labor cost. All the process and division at ADS are operating for a single shift of 8 hours in a day. Conversion cost per hour, including labor cost, is 5600. Standard output for PCIA during a day is the processing of either 800 units of C100, 560 of C125 or 320 of C500. ADS is capable of sale more than what they are presently capable to produce in all range of models. CEO of ADS recently attended a science fair, Robotech 4.0, where he saw a robot developed by Synergy Robotics Limited capable to assembly, including installation of processing chip to any sort of device. Management hired you as a cost consultant advice on the following aspects. On a random day, if 480 units, 140 units and 120 units of C100, 125 and 500 respectively are produced and sold, calculate at what efficiency level current constraint is operational, interpret the same, compute profit earned during such day. तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा. Now I take 8 hours to make 800 units या फिर 8 hours for 560 units या फिर 8 hours for 320 units, right? तो 1 hour में मैं बना रहा हूँ 100, यहाँ पर बना रहा हूँ 70, यहाँ पर बना रहा हूँ 40. I want to make 480, 140 and 120 in 8 hours. तो इसके लिए मुझे कितने लग जाएंगे?
4.8, 2 एंड 3, तो ये आएगा 9.8। मतलब मैं 8 घंटे में जो मुझे बनाना चाहिए, सॉरी 9.8 आवर्स में जो मुझे बनाना चाहिए था, दिस शुड हैव टेकन एज पर स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड टाइमिंग्स 9.8 आवर्स। ऑलराइट, क्योंकि मैं अगर 1 आवर में 100 बना रहा हूँ तो मुझे 480 बनाने के लिए 480 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 4.8 आवर्स चाहिए। सिमिलरली इसका कैलकुलेशन होगा 2 आवर्स चाहिए, इसका कैलकुलेशन होगा तो 3 आवर्स आ जाएगा। तो टोटल 9.8 आवर्स चाहिए अगर मुझे ये बनाना है तो, बट मैं इसको बना रहा हूँ 8 आवर्स में। ठीक है, तो मेरा एफिशिएंसी कितना हो गया, 9.8 अपॉन 8 इंटू 100, 122.5%। दिस इज माई एफिशिएंसी, यानी कि मैं 22.5% ज़्यादा तेज़ हूँ देन स्टैंडर्ड। ठीक है, सो आई एम यूजिंग, ये इंटरप्रेट कर रहे हैं हम लोग, सो आई एम यूटिलाइजिंग द कॉन्स्ट्रेंट आवर्स more efficiently than what it is supposed to be as per standards. Compute profit, तो इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है हमें। तो इसके प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना होगा 480 140 120, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्राइजेस से, 140 200 एंड 450। ओके, एंड इसमें से मटेरियल कॉस्ट को भी माइनस कर देते हैं, 72 104 और 200। ठीक है, इसका जो भी टोटल आएगा उसमें से अल्टीमेटली कन्वर्जन कॉस्ट माइनस करना है, तो निकल के आ जाएगा। तो 140 माइनस 72 इंटू 480, तीनों का एक साथ ही ऐड कर रहा हूँ, एंड 50 इंटू 120, तो ये 52080 आता है। आई होप मैंने कैलकुलेशन सही किया है कैलकुलेटर पे। उसके बाद में कन्वर्जन कॉस्ट लेना है, तो सिंपली 5600 इंटू 8 आवर्स। ठीक है, इसको माइनस करना होगा हमें, 5600 इंटू 8 इज 44800, तो 7280 आता। आई होप दिस इज द करेक्ट आंसर, अनलेस कि मैंने कैलकुलेटर पे कुछ गलती कर दी। जस्ट टू रिकन्फर्म वंस, नो आई थिंक दिस इज करेक्ट। तो ये वाला पार्ट भी हो जाता है। फाइंड प्रोडक्शन ऑफ विच मॉडल इज मोर बेनिफिशियल कंसिडरिंग द रैंकिंग बेस्ड अपॉन थ्रूपुट परफॉर्मेंस रेशियो। तो थ्रूपुट परफॉर्मेंस रेशियो में क्या होता है कि हम लोग थ्रूपुट ले लेते हैं, विच इज़ बेसिकली योर सेलिंग प्राइस माइनस मटेरियल कॉस्ट, और फिर इसको कन्वर्जन कॉस्ट से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा। ओके, सो आप कर सकते हो इसको 140 माइनस 72, इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट लाइक दिस। 140 माइनस 72 होता है 68, 200 माइनस 104 होता है 96, एंड दिस इज 250। ओके, सो यहाँ पे गलती हो गई है, ये 200 है इंस्टेड ऑफ 400। $30,000 तो ये 76080 आएगा, और इसमें से फिर हम माइनस कर देते हैं 5600 इंटू 8 को, तो 31280 आएगा।
राइट, वी वर हियर। तो ये आपका थ्रूपुट है, इसको आप डिवाइड करोगे कन्वर्जन कॉस्ट से, ऑलराइट। तो इसको हम लोग कन्वर्जन कॉस्ट को पर आवर निकालना पड़ेगा, वो दिया हुआ है हमें 5600, एंड दिस इज पर यूनिट। तो हम लोग एक यूनिट के लिए कितने आवर्स ले रहे हैं? इन 1 hour वी आर मेकिंग 100 यूनिट्स। तो इसको हमें आर बेसिस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, दिस इज ऑन पर यूनिट बेसिस, तो इसको आरली बेसिस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर तो कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। तो इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग इट इनटू आरली बेसिस, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा विद द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट आई कैन मेक इन अ डे। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 800 से, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 560 से, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 320 से। ओके, तो मेरा कुछ यहाँ पे आंसर आएगा। $96 into 560 is and 250 into 320 is, ठीक है। तो वैसे तो यहीं से देख के पता चल जाता है कि किसका सबसे ज़्यादा आने वाला है, विच इज़ C500, क्योंकि जो आपका कन्वर्जन कॉस्ट है वो तो सेम है, 5600 मल्टीप्लाइड बाई 8, और वो हमारा क्या आया था 40800, वैसा कुछ आया था। 5600 into 8, 44800। हर एक का टीए रेशो आपका निकल जाएगा, उसके बेसिस पर आप रैंकिंग दे दोगे, सबसे ज़्यादा इसकी आएगी, यहीं से दिख रहा है, उसके बाद इसकी आएगी, और उसके बाद इसकी आएगी। तो दिस इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, रैंक कर दिया। अप्लाई गोल्ड्रैट्स 5 steps टू रिमूव द बॉटलनेक एट अबैकस। तो इसका 5 step मॉडल क्या होता है? सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है बॉटलनेक कहाँ पर है, ओके, फिर हमें उसको यूज़ करना होता है, फिर बाकी सबको सबॉर्डिनेट करना होता है उसके हिसाब से। अल्टीमेटली वी ट्राई टू रिमूव द बॉटलनेक, और फिर हम लोग कंटिन्यूसली फिर सर्च करते जाते हैं, इम्प्रूव करते जाते हैं। ये होता है 5 step। तो हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे यहाँ पर? सबसे पहले तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि जो बॉटलनेक है वो PCIe है, ऑलराइट। उसको कैसे हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हमारा एफिशिएंसी ऑलरेडी ज़्यादा है। हम लोग 8 hours में जो बनाना चाहिए, सॉरी 9.8 hours में जो बनाना चाहिए वो हम लोग 8 hours में बना रहे हैं। तो हम लोगों का एफिशिएंसी ऑलरेडी ज़्यादा है, एंड वी आर यूजिंग द आवर्स एज पर मैक्सिमम बेनिफिट। उसके बाद में हमें बाकी सारी एक्टिविटीज़ को उसके हिसाब से सबऑर्डिनेट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग अगर बाकी एक्टिविटीज़ का एफिशिएंसी ज़्यादा भी रख लेंगे तो अल्टीमेटली हम लोग उतना ही बना सकते हैं, उतना ही सेल कर सकते हैं जितना बॉटलनेक एक्टिविटी हमें अलाउ करता है, राइट। तो यहाँ पर सिर्फ स्टॉक पाइल अप होते जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो बाकी सारी एक्टिविटीज़ को वी हैव टू पुट देम इन सबऑर्डिनेट टू द बॉटलनेक एक्टिविटी। उसके बाद में फिर हमें रिमूव करना होगा बॉटलनेक को। तो यहाँ पर कैसे रिमूव कर सकते हैं? यहाँ पर हमें बताया है कि ये रोबोट है कोई सा जो केपेबल है असेंबली करने के, तो इस रोबोट को लेके आ सकते हैं। हम लोग ट्राई करेंगे कि ये एलिमिनेट हो जाए, बट डेफिनेटली कोई बॉटलनेक एलिमिनेट नहीं हो सकता। ये एलिमिनेट हो जाएगा तो फिर इसके बाद वाला जो भी एक्टिविटी होगा, जो भी कंस्ट्रेंट क्रिएट कर रहा होगा, वो बॉटलनेक बन जाएगा, राइट। सो यू हैव टू कंटिन्यूसली इंप्रूव, विच इज द लास्ट स्टेप। तो ये आपके 5 स्टेप हो गए, 1 2 3, ठीक है। 31 to 80 यही आया था। एंड उसके बाद में आइडेंटिफाई, एक्सप्लॉइट, सबऑर्डिनेट, एलिवेट द बॉटलनेक जिसमें रिमूव होता है, एंड रिपीट द प्रोसेस विच इज इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रिस्टीन मेकर्स इज वन ऑफ द लार्जेस्ट लॉन्ड्री सर्विस प्रोवाइडर्स फॉर सूट्स। द फर्म हैज set a price of 510 rupees for cleaning the suit set. Pristine Makers derived this price as follows: cleaning materials 35, labor 3 hours at 5150, variable overhead 70, fixed overheads 3 at 1545, plus markup of 70% on total cost. तो टोटल कॉस्ट इसके हिसाब से 300 आती है, प्लस 70% विच इज़ 210, तो आया 510।
Pristine Makers is known for its quality work and timely delivery. Hence, customers are willing to pay this premium price. Firms' employees receive a fixed salary. The hourly rate 50 is arrived by dividing the total salary by the total number of hours available. Variable overheads depend on the number of suits cleaned, whereas fixed overheads rate is derived by at dividing the total cost of all related expenses by the number of labor hours available. Fixed overheads generally include office rent and administrative salary. A local hotel approached Pristine Makers as the regular cleaners of these suits are on strike about the possibility of cleaning 130 suits in coming week. They need the work done on a rush basis. तो हम लोग किस लिए जाने जाते हैं? क्वालिटी वर्क एंड टाइमली डिलीवरी. तो रश बेसिस है, हम लोग टाइमली डिलीवरी कर सकते हैं क्या? Pristine Makers has sufficient quantity of required cleaning material in stock for special order. It perceives that it could complete 60% of the special order during normal working hours. However, complete the remaining 40%, some employees will have to work overtime. Overtime कैसे दे रहे हैं? Premium पे time and a half the normal hourly rate. Advise the price it shall quote for the special order. Does special order decision deal with excess supply or excess demand? Analyze whether such special order be accepted on rush basis. Comment. सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं. तो हमें क्या एडिशनल चाहिए 130 सूट्स के लिए? सबसे पहले 35 रुपीज़ का मटेरियल. ओके, उसके बाद में लेबर तो फिक्स्ड है, हम लोगों को सिर्फ ओवर टाइम पे करना है. तो ओवर टाइम का पेमेंट देख लेते हैं. 40% है तो 130 दिस इज इंटू 130, फिर 130 इंटू 40% पे हमें 3 आवर्स लगाना है एट 50, बट ये देना है इंटू 1.5 टाइम्स. ओके, उसके बाद में आपका ओवरहेड्स आ जाता है वेरिएबल वाला विच इज़ 70. तो 70 इंटू 130 ये आपका कॉस्ट है. ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं. ऑलराइट, तो ये हमारा आ जाता है कॉस्ट. ऑलराइट, उसके बाद में हमें बोला है सो दिस इज द प्राइस. ऑलराइट, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा एक्चुअली. दिस डिवाइडेड बाय 130 तो आपका आता है 195. उसके बाद में आता है स्पेशल ऑर्डर डिसीजन डील विद एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड. तो डेफिनेटली जैसे हमारे पास में लेबर का सप्लाई अवेलेबल नहीं था तो फिर हमने ओवर टाइम किया, जिसके लिए हमें इंक्रीमेंटल वेजेस उनको पे करना पड़ा ओवर टाइम वेजेस के फॉर्म में. तो वो हमें फिर कंसिडर करना पड़ेगा. तो जो फिक्स कॉस्ट है हम लोग उसको इग्नोर कर सकते हैं, बट जो इंक्रीमेंटल एक्सपेंडिचर हम लोग अगर इनकर कर रहे हैं सो वी विल हैव टू कंसिडर दैट. सो इट डज डील विद एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड. ऑलराइट, उसके अलावा सच स्पेशल ऑर्डर भी एक्सेप्टेड ऑन रश बेसिस. तो हमें ये देखना होगा नॉन फाइनेंशियल वे में, हमें ये देखना होगा क्वालिटेटिव फैक्टर में कि क्या हम लोग टाइमली डिलीवरी कर पाएंगे. ठीक है, वन थिंग इज़ दैट हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ये ऑर्डर करने से, क्योंकि अल्टीमेटली हमें ये मिल रहा है. हमें ये भी देखना होगा कि क्या हमारे पास में वापस ऑर्डर्स आने वाले हैं. अगर वापस ऑर्डर्स आने वाले हैं तो हम लोग इस प्राइस पे देंगे. अदरवाइज़ फिर हम लोग सोचेंगे कि ठीक है अभी इसको भी प्रीमियम चार्ज कर देते हैं, क्योंकि उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं, तो प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं इसको भी. ऑलराइट, वन थिंग इज़ दैट. सेकेंडली, हम लोग क्या क्वालिटी वर्क कर पाएंगे, क्योंकि रश बेसिस पर देना है तो क्या क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो जाएगा सर्विसेज में. वन थिंग इज़ दैट टू बी लुक्ड एट, क्योंकि हम लोग इसके लिए जाने जाते हैं तो हम लोग अपना रेपुटेशन ख़राब नहीं करेंगे मार्केट में. सेकेंडली, टाइमली डिलीवरी हम लोग देते हैं बट रश बेसिस पे है तो क्या हम लोग दे पाएंगे टाइम पे? अगर नहीं दे पाएंगे तो फिर हम लोग वापस से अपना रेपुटेशन यहाँ पर ख़राब नहीं करेंगे. ऑलराइट, सो ये 25350 जो हमारा कॉस्ट आया था
वही इनका आंसर है 195 पर सूट। उसके बाद में उन्होंने यहीं पर भी क्वालिटेटिव फैक्टर्स मेंशन किए, तो क्योंकि हमें एडवाइस करना था, ठीक है। सो एक छोटा सा वर्ड अगर हम लोग स्किप कर दें तो पूरा आंसर आपका पूरा तो नहीं बट काफ़ी आपका मेजर पोर्शन गलत हो सकता है। सो यू विल हैव टू रीड योर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, ठीक है। सो यहाँ पर शॉर्ट रन बेनिफिट्स के बेसिस पर हम लोग कर सकते हैं, उसको प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं, बट अगर रिपीट ऑर्डर्स आने वाले हैं, ठीक है, रिपीट बिजनेस उससे मिलता है, तो फिर हम लोग नॉर्मल प्राइस चार्ज करेंगे। उसके अलावा हम लोग जो बात किए थे वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखना है कि कैसे एक्सेस डिमांड का रोल आ जाता है। फिर वही है यहाँ पर कि या तो हम लोग ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा सकते हैं, अदर साइड पे हम लोगों को देखना होगा कि क्या हम लोग डिलीवर कर पाएंगे अर्जेंटली, ठीक है, टाइमली डिलीवरी करना है। उसके अलावा गुडविल ब्रांड नेम ख़राब नहीं होने देना है। एंड यहाँ पर कहीं पे इन्होंने क्वालिटी की भी बात लिखी होगी, क्वालिटी ऑफ सर्विस भी अच्छी देना है, राइट। तो हम लोग पहले देखेंगे कि रश ऑर्डर एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। यू विल हैव टू कंसिडर द शॉर्ट रन बेनिफिट्स बट ऑल्सो लॉन्ग रन कॉन्सिक्वेंसेज को भी देखना पड़ेगा प्रॉफिटेबिलिटी पे, ऑलराइट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि उसके बाद के क्वेश्चंस रिपीट है, पहले हम लोग देखे हुए एसएम से रिपीटेड है। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग September 2020, Sandy offers bundling and item packing facilities for standard size 24 inches by 12 inches by 10 inches to give best facility to satisfy its industrial customers' need at the Great Ocean Warehouse. Sandy plans to pack 93,750 items at the rate of 4.50 per item, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं फिर ही कैलकुलेशन करेंगे। Sandy estimates that variable cost, which is all resources, will be equal to 1.5 per item packed and that fixed cost जो रहेगा will be equal to 58,000 per month. In September 2020, Sandy actually packed 112,500 items, received 506,250. Sandy paid 1,80,000 on resources, जिसमें परचेज था ऑफ टेप एट रिटेल प्राइस क्योंकि अर्जेंटली परचेज करना पड़ा। इन एडिशन सैंडी पेड 70,000 टू द वेयर हाउस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, तो ये फिक्स्ड हो गया। उसके बाद में दिस पास्ट सितंबर वाज अनयूजुअली हॉट एंड सैंडी इज चार्ज्ड अ परसेंटेज ऑफ द वेयर हाउस एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी बिल। प्रिपेयर अ बजट रिकन्सिलिएशन रिपोर्ट अलॉन्ग विद सूटेबल एनालिसिस, ठीक है। तो सबसे पहले ये 506,250 जो इसने रेवेन्यू अर्न किया है 112,500 आइटम्स के हिसाब से, उसमें भी 4.5 ही आता है, ठीक है। और जो इसने 1,80,000 दिया है उसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 112,500 से, तो मेरा 1.6 आता है। तो 1.5 और 1.6 में बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, वो जो डिफरेंस है वो मोस्टली इसके बेसिस पर ही होगा। एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। 112,500 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 माइनस 1,80,000, 11,250। ये जो 11,250 का डिफरेंस है ना, ये मोस्टली टेप के बेसिस पर हो सकता है क्योंकि अर्जेंटली टेप परचेज करनी पड़ी। हो सकता है कि हमने एफिशिएंटली यूज़ किया था हमारे रिसोर्सेज को बट टेप का और ज़्यादा था, तो फिर सेट ऑफ होके 11,250 का एडवर्स दिख रहा है, राइट यहाँ पर। तो इसके रीज़न हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, थोड़ा यहाँ पर गेसवर्क करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास में इतना डिटेल डेटा नहीं है, ऑलराइट। तो बजट रिकन्सिलिएशन बनाना है तो आपका जो 4.5 का ही रेट आ रहा है ना यहाँ पर भी, तो जो भी डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम के बेसिस पर है। तो एक तो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस हो गया, ठीक है। एक आपका वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस पूरा ऐसा का ऐसा लेना पड़ेगा क्योंकि अपने पास में डेटा नहीं है उसको बाइफरकेट करने के लिए, और एक फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएंस है जो कि डायरेक्टली आ रहा है, ऑलराइट। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, variable cost variance and fixed cost variance, that will come to 93,750 multiplied by 4.5 minus 506,250 क्या था 84,375, ठीक है। ये आपका वॉल्यूम वेरिएंस ये फेवरेबल है। वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस क्या दिख रहा है 1.5
मल्टीप्लाइड बाय 93750 और यहाँ पर है 180 39375। ठीक है, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई कि कितना वॉल्यूम के बेसिस पर हुआ होगा, उसके लिए हमें डिटेल्स चाहिए थी कि कितना क्वांटिटी यूज़ किया है। उसके बाद में डायरेक्ट ये दिख रहा है 70,000 और 58,000, 12,000 का एडवर्स है। ठीक है, आई थिंक दिस शुड सफाइस। तो अल्टीमेटली आपका पहले क्या था, $93,750 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 58,000, 2,23,250। ये था आपका बजटेड प्रॉफिट। अब आया आपका एक्चुअल प्रॉफिट प्लस 84,375 माइनस 39,375 माइनस 12,000, तो ये आता है 256,250। तो ये हो गया। अब हमें क्या पूछे, विथ सूटेबल एनालिसिस। तो एनालिसिस कर लेते हैं। वॉल्यूम वेरिएंस आपका फेवरेबल इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपने ज़्यादा काम किया है, दिस इज़ क्लियरली विजिबल। 112500 आइटम्स आपने पैक कर दिए, तो उसकी वजह से ही डिफरेंस है, ये तो क्लियरली दिख रहा है। उसके अलावा इसका कोई रीज़न नहीं है। कमिंग टू योर वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस, जहाँ पर हमें दिख रहा है कि हो सकता है ये अर्जेंट परचेज ऑफ टेप की वजह से हो, ठीक है, बट हो सकता है उसकी वजह से ज़्यादा हो, हमने एफिशिएंटली यूज़ किया हो तो सेट ऑफ होके इतना आ रहा है, या फिर हो सकता है कि जो डिफरेंस है वो इसी की वजह से। सो ये रीज़न हो सकते हैं। उसके अलावा फिर दिख रहा है कि 70,000 इसका था, 58,000 इसका था, तो क्लियर कट डिफरेंस है। उसमें हमने को ये भी बताया हुआ है कि परसेंटेज भी चार्ज कर दिया है। सो मेरे पास एनालिसिस करने के लिए बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है। अल्टीमेटली ये आया 256,250। ऑलराइट, कैसे किया है उन्होंने, 56,250, 11,250, 12,000। ओके, तो उन्होंने यहाँ पर सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस में सेल्स कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस कर दिया। ठीक है, उन्होंने कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे कैलकुलेट कर दिया है, जहाँ पर हमने जो डिफरेंस स्ट्रेट अवे निकाल दिया, उन्होंने एक्चुअली जो नंबर ऑफ यूनिट्स का डिफरेंस है विच इज़ 112500 माइनस 93750, इसको किया इंटू 3 तो 56250 आता है। ठीक है, तो उन्होंने सेल्स कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस निकाल दिया, और जो वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस है उसमें भी वो लोग फिर लेके आए कि अगर मैं 112500 यूनिट्स ही बनाता और उसमें मुझे जो कॉस्ट लगना चाहिए था एज पर बजटेड, उसमें से जो डिफरेंस निकालते हैं, तो उन्होंने वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस के लिए वही लिया है 11,250। आई थिंक दिस इज़ अ मच बेटर अप्रोच जो इन्होंने फॉलो किया है कंपेयर टू आवर्स, तो ये वाला कर सकते हैं। अल्टीमेटली आंसर इज गोइंग टू कम द सेम। ठीक है, तो वही है, बट उनका मुझे जो तरीका है वो ज़्यादा बेटर लगता है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने ओरली जब कैलकुलेट किया था तो 11,250 कैलकुलेट कर दिया था एडवर्स का, राइट, बट वाइल राइटिंग इट आई कैलकुलेटेड इट इन अ डिफरेंट मैनर, बट आई थिंक दिस इज़ अ बेटर वे ऑफ सॉल्विंग। वैसे भी इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट का जो भी तरीका होता है वो हमेशा बेहतर ही होता है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। सो दिस इज़ हाउ यू गो टू कैलकुलेट फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू। ये जो पूरा सीरीज था, आई होप आपका जो भी टेंशन था केस स्टडी डाइजेस्ट को लेके वो कम कर दिया होगा। मैंने कहीं ना कहीं कोशिश करी वो कम करने की। वी हैव कवर्ड ऑल ऑफ द 23 क्वेश्चंस। इसमें से 8 क्वेश्चन हम लोग पहले से कर चुके हैं, 15 क्वेश्चंस नए आए तो उसको भी हमने इस सीरीज में कवर किया है। Thank you so much for watching. All the best for your exams. I'll see you in the next video.